In the previous lectures, we have discussed about the one component system. Now moving toward the two component system. In one component, we have discussed the variation of pressure versus temperature, and we have not considered the concentration. Why we not consider the concentration? Because it was only one component, whether taken 1 gram or whether taken 10 gram, it behaves similarly. So there is no effect of concentration. So we discuss the plot of pressure versus temperature for a single component. In the single component discussion, water system is discussed as well as sulfur system that we discussed in the last lecture. Now when it comes to the two component system, then concentration factor also involved in the variation of pressure and temperature. So we are not only having the P and T as a variable, but concentration is the third factor that is variable here. Now concentration of two components, because there is presence of two components. So instead of having the knowledge of concentration of two components, we consider only the concentration of one component. Why? Because the concentration terms are in terms of mole fraction. So if mole fraction of one component is known, then another mole fraction can be calculated by subtracting it from 1. For example, 0.2 if the mole fraction for one component, then obviously 1 minus 0.2, that is equal to 0.8 is the mole fraction of the another component. So only concentration of one component that is needed here. So now we are having a 3D diagram or 3D plot in which one variable is pressure, another variable is temperature, another variable is the concentration. Since it is not easy to discuss the 3D diagrams, so we convert them into 2D by taking one of them as constant. And in a very general way, or in all general systems, we take pressure as the constant term, and there is variation of the temperature and the concentration. Here I have shown that temperature and concentration are the variable. So changing it from 3D to 2-dimensional. We can also take pressure and concentration as the variable, keeping T as constant. We can also take concentration constant and variation of pressure and the temperature. So any two of them, they can be taken as the variable depending upon system, one system to the another system. Why we take generally variation of temperature and concentration and keeping pressure constant? It is generally known in various systems that pressure has very little effect on the concentration term or on the temperature terms here when we are discussing the any two component system. And in many industries, we do not having the variation of pressure in many reactions, only the variation of temperature and concentration that is considered. It may possible that in some of the component we may have the variation of pressure keeping T constant. What term is constant? Accordingly, the graphs are named. If we are having variation of pressure and temperature keeping concentration constant, the diagrams are termed as the isolethal diagrams, or the graphs, they are termed as the isolethal. The word is ISOPLETHAL, isolethal. That is the word here, isolethal. It is constant composition. There is no change in composition, but we are discussing the
variation of P and T keeping composition or concentration constant. When there is variation of P and C keeping temperature constant, it is well known that it is known as the isotherms, temperature constant. And when we are having variation of T and C keeping pressure constant, then term used is isovars. So the different terms are there: isotherm, temperature constant; isovars, pressure constant; isolethal, then composition constant. So instead of having 3 variable, now we are having the 2 variable. And in the discussions, whatever it will come in further for the 2 component system, we will keep the pressure constant. Downward I have written condensed system and condensed phase rule. Condensed systems are what systems? Since in many reactions pressure is having little effect, so we term these systems as the condensed systems. क्या बोलते हैं इनको? Condensed. Condensed means which is not present in the solid state, it is present in the liquid state. तो लिक्विड स्टेट में जो प्रेशर का और सॉलिड स्टेट में प्रेशर का बहुत कम फर्क पड़ता है. जैसे पानी है तो प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो उसके वॉल्यूम में बहुत कम चेंज आएगी. अगर कोई सोडियम क्लोराइड का या मेटल के बार है या क्रिस्टल है, इफ यू विल अप्लाई द प्रेशर देयर विल बी वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द शेप और you can say size of the crystal. So there is no gaseous system, so we are keeping pressure constant. So no gaseous system means it is condensed. In the condensed form it can be liquid, it can be solid. So these are termed as the condensed system, where we are taking the pressure as the constant terms. And now phase rule will change, and that phase rule gives phase rule. It is F is equal to C minus P plus 2. It is termed as now condensed phase rule, and it has to be modified accordingly because we have taken one component constant. Since one component is blocked, which one? Pressure constant. So phase rule becomes F is equal to C minus P plus 1. क्या क्या टर्म थी ये? C माइनस P टर्म जो वो कंसंट्रेशन की वजह से आई थी. किसकी वजह से? कंसंट्रेशन की वजह से. प्लस 2 का मतलब था 1 प्लस 1. 1 वाज फॉर टेम्परेचर, अनदर 1 वाज फॉर द प्रेशर. तो उसमें टेम्परेचर की टर्म मैंने यहां रहने दी तो उसके लिए 1 रह गया, और प्रेशर की टर्म को मैंने यहां से ओमिट कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो उसको मैंने 0 कर दिया. इसलिए C माइनस P प्लस 2 की बजाय C माइनस P प्लस 1 आएगा. तो इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फेज रूल और मॉडिफाइड फेज रूल फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम. Since no pressure term is there, so pressure term is there means gaseous contents they are missing from here. अगर गैसियस नहीं है तो आपके पास सॉलिड स्टेट होगी और लिक्विड स्टेट होगी. तो फिगर में जितने भी आपको शायद वर्ड नजर आ रहे हैं, या तो वो मैंने लिक्विड लिख रखा है या वो मैंने सॉलिड लिख रखा है. ये एक बहुत ही जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए? फॉर द 2 कंपोनेंट सिस्टम विच इज नॉट हैविंग एनी गैसियस कंपोनेंट. तो इसमें जो डायग्राम है ये जनरली कांस्टेंट रहेगा. इनके साइज वेरी कर सकते हैं. जैसे लिक्विड स्टेट जहां मैंने शो किया वहां लिक्विड ही होगी, जहां मैंने सॉलिड A प्लस लिक्विड शो किया वहां सॉलिड A प्लस लिक्विड ही होगा, जहां सॉलिड B प्लस लिक्विड शो किया वहां यही रहेगा, और नीचे मैंने सॉलिड A और सॉलिड B लिख रखा है. तो ये बहुत ही जनरल रिप्रेजेंटेशन है एक 2 कंपोनेंट सिस्टम की. किसकी? 2 कंपोनेंट सिस्टम की. इस साइड टेम्परेचर की वेरिएशन है, सो T इज रिटन हियर, एंड देर इज वेरिएशन ऑफ द कंपोजिशन. तो मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने वेरिएशन शो कर रखी है. तो एक साइड को A इंक्रीज हो रहा है, दूसरी साइड को B इंक्रीज हो रहा है. B इज
toward the positive x-axis, A is toward the negative x-axis. So it is the variation of concentration as well as variation of the temperature. How the composition that varies with respect to the temperature, that is being discussed in the condensed phase rule. जब डिस्कशन की बात आती है तो कहाँ कौन सा फेज होगा, कहाँ कौन से कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, किस पॉइंट को क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, वो आपको अंडरस्टैंड करना है. जो लिक्विड वाला पोर्शन है इसमें दो कंपोनेंट होंगे. कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट, क्योंकि पहले ही बात आ रही है कि टू कंपोनेंट सिस्टम है. इट मींस टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट. लेकिन जब वो लिक्विड स्टेट में है तो बी सपोज दैट इट इज क्लियरली मिसिबल मिक्सचर, नॉट इमिसिबल मिक्सचर. अगर मिसिबल मिक्सचर है तो उसमें हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कौन सा ए है कौन सा बी है, तो इसको हम जनरली वन फेज कंसीडर करेंगे. लिसन अगेन, क्या कहा मैंने? दो कंपोनेंट है मेरे पास, एक कंपोनेंट ए दूसरा कंपोनेंट बी, दोनों को मिक्स किया और मोल्टन स्टेट में है. किस स्टेट में है? मोल्टन स्टेट में. एक्वस स्टेट नहीं लेनी है, एक्वस अलग चीज आ रही है और मोल्टन अलग चीज आ रही है. जब वो मोल्टन स्टेट में है, मेटल्स है मान लो, एक जिंक है एक मैग्नीशियम है, तो दोनों को मेल्ट किया और मिक्स कर दिया है. जिस वक्त वो मोल्टन स्टेट में है तो वो सेपरेट नहीं है, दैट इज ओनली वन फेज लिक्विड फेज. क्या बोलेंगे उसको? लिक्विड फेज. इसको आप किसी भी पॉइंट से जो वो स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने इस पॉइंट से इसको अगर ए पॉइंट से स्टार्ट किया तो ए से बी तक अगर मैंने लाइन डिस्कस करनी है तो इस लाइन के ऊपर ऊपर जो है, जो ऑरेंज पोर्शन है उसमें मोल्टन मेटल्स हैं और नीचे जो पिंक पोर्शन शो कर रखा है, अगर आप लाइन से नीचे आते हो तो उसमें सॉलिड ए की सेपरेशन होगी लिक्विड से. अबव वन it is a mixture of two components. Which one? This is a mixture of the two component, one metal another metal. above this line, which line? AV कर्व जो आ रहा है इससे ऊपर ऊपर. जैसे आप इससे नीचे आते हो तो इसमें से सॉलिड A सेपरेट होता जाता है. सो दिस इज ए, यू कैन से मेल्टिंग पॉइंट लाइन, क्योंकि ऊपर जाते हो तो मेल्ट हो गया, नीचे आते हो तो क्या हो रहा है? वो सॉलिडिफाई हो रहा है. तो फ्यूजन कर्व बोल सकते हैं. और अगर इसमें सॉलिड और वाटर की बात है तो उसको डिसोल्यूशन कर्व बोल सकते हैं या सोल्युबिलिटी कर्व बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं उसको? सोल्युबिलिटी कर्व या डिसोल्यूशन कर्व. और अगर मेटल्स की बात है तो इसको फ्यूजन कर्व भी बोल सकते हैं. क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कर्व या फिर क्या बोलेंगे इसको? फ्यूजन कर्व. तो जैसे जैसे आप इससे यहां से ट्रेवल करते हो, सो दिस लाइन कम्स डाउन एंड एट दिस पॉइंट टेम्परेचर यहां ज्यादा है. जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या है? कम होता जा रहा है. तो एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे जो है वो ए की सेपरेशन होना बंद हो जाएगी. यू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए. इस पॉइंट पे अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो सॉलिड ए जो वो लिक्विड से, किस लिक्विड से? इस लिक्विड से सेपरेट होता जाएगा. It continue to separate from point A up to the point B. एक और तरीके से अगर इसको स्टडी करना है तो पॉइंट A जो है दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड A. क्या ये सॉलिड A का, प्योर A का मेल्टिंग पॉइंट है. जैसे जैसे आप इससे आगे जाते हो तो इसमें B की मिक्सिंग हो रही है, तो B के एडिशन से मेटल ए का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है. इट डिक्रीजेस स्लोली एंड इट डिक्रीजेस अप टू द पॉइंट बी. ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफिकल्ट भी लग सकता है आपको, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है. इनको अभी मेटल्स ही सपोज कर लो कि एक मेटल ए है दूसरी मेटल बी है. अगर आप यहां नीचे वेरिएशन चेक करते हो तो एक साइड ए 100% है, किस साइड? यहां पर ए जो है दैट इज 100%. जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो मिक्सचर क्या होता जाएगा? 90-10, 90A 10B
उसी तरह से 80-20, 30-70 या फिर 60-40, 50-50 इस तरह से मोल फ्रैक्शन वेरी करेगी। तो ये प्योर ए है, तो ये प्योर ए का मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे आप आगे जाते हो, यू हैव एडेड सम बी इनटू ए, तो उससे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए विल फॉल एंड इट विल फॉल, कंटिन्यू टू फॉल अप टू द पॉइंट बी। एक ये डिस्कशन आई। दूसरी डिस्कशन मैंने क्या बोली कि ए का ये फ्यूजन कर्व है, तो जैसे जैसे आप ए से बी की तरफ ट्रेवल करते हो तो लिक्विड में से ए, सॉलिड ए सेपरेट होता जाएगा। इट कंटिन्यू टू सेपरेट अप टू द पॉइंट बी। बी के बाद इसकी सेपरेशन बंद हो जाएगी। देर इज नो सेपरेशन ऑफ ए फर्दर आफ्टर पॉइंट बी। जैसे जैसे आप परे ट्रेवल करते हो, किससे, बी से आगे ट्रेवल करते हो, नाउ सेपरेशन ऑफ बी स्टार्ट्स बिलो दिस लाइन। तो इस लाइन के नीचे जो है वो बी की सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। इट कंटिन्यूज अप टू द पॉइंट सी। तो जैसे जैसे बी की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, बिकॉज वी आर मूविंग टू वार्ड दिस पॉइंट, सो हियर सी बी इज इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे बी की कंसेंट्रेशन जो वो मिक्सचर में इंक्रीज होती जाएगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो इंक्रीज होता गया यहां पर सी तक इंक्रीज हो गया। और इस एरिया में जो है वो दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक सॉलिड बी की सेपरेशन हो रही है और मेल्ट या लिक्विड जो है वो इसमें प्रेजेंट है। इन दोनों लाइन के नीचे जो है ये लाइन जो जहां ग्रेइश पोर्शन नजर आ रहा है, इसमें केवल सॉलिड ए और सॉलिड बी है। इन दिस अबव बिलो दिस लाइन ओनली प्रेजेंस ऑफ सॉलिड ए एंड सॉलिड बी। Again discussing, now I will start from the point C, not from the point A. Now C is the melting point of pure B, क्योंकि ये देखो B यहां पर कितना है, 100% है। So C is the melting point of pure B. जैसे आप यहां से ट्रेवल करोगे आगे की तरफ को, ग्राफ डिस्कस करोगे, it means you are increasing the concentration of A because A is increasing toward this side. तो इसका मतलब जैसे जैसे आप बी में ए ऐड करते जाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट बी का क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। किस साइड से, इट विल कंटिन्यू टू डिक्रीज अलोंग दिस लाइन। इस लाइन से लेस होता गया और ये इस पॉइंट तक डिक्रीज हो जाएगा। ये जो पॉइंट बी है जहां दोनों कर्व मिलते हैं, दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज द यूटेक्टिक पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, EUTECTIC, यूटेक्टिक। यूटेक्टिक का मतलब होता है इजिली मेल्टिंग। तो ये एक कर्व जो है वो बी का मेल्टिंग पॉइंट है, कौन सा, जो ब्लू वाली साइड आ रहा है, और दूसरा कर्व जो है वो ए के मेल्टिंग पॉइंट का कर्व है। तो ए का मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा बी के एडिशन से, और बी का मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा ए के एडिशन से। ये एक पर्टिकुलर कंपोजिशन है जिस कंपोजिशन पे दोनों मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मिनिमम है। देखो यहां मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, यहां ज्यादा, यहां ज्यादा, यहां क्या हो गया, कम हो गया। इसके नीचे तो सॉलिड है, इसके ऊपर क्या है, फिर सॉलिड है, या सॉरी लिक्विड स्टेट आ रही है। तो यहां जो है वो बी पॉइंट जो है वो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, तो इसको इजी मेल्टिंग पॉइंट या इजिली मेल्टिंग सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इजिली मेल्टिंग। तो ये जो पर्टिकुलर कंपोजिशन है ए और बी की, दिस कंपोजिशन, पर्टिकुलर कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट बी इज टर्म्ड एज द इजिली मेल्टेबल कंपोजिशन। तो ये कंपोजिशन जिस पॉइंट पे आती है उसको बोलते हैं हम यूटेक्टिक पॉइंट। नो हाउ टू डील विद द फेज रूल इक्वेशंस। जहां लिक्विड स्टेट है, मैंने कहा कि दोनों आपस में मेटल्स वेल मिक्स्ड होंगी, तो वेल मिक्स्ड होंगी तो वो सिंगल ही फेज काउंट होगा। सो व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सिंस कंपोनेंट्स आर 2, सो C इक्वल टू 2, phases इक्वल टू 1, so it becomes F equal to 2, it is a Y variant. So in the liquid area, जो भी लिक्विड का एरिया है ऑरेंज कलर का, इसमें आप टेम्परेचर भी वेरी कर सकते हैं और कंसंट्रेशन भी वेरी कर सकते हैं। When you are discussing the lines,
आइदर फ्रीजिंग पॉइंट कर्व बोलते हैं और इनको सोलबिलिटी कर्व बोलते हैं। कंपोनेंट दो हो गए, यहां फेजेस दो। क्यों? एक सॉलिड ए प्लस लिक्विड, इट मीन्स एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है, तो फेजेस दो हो गए। तो इसमें पी की वैल्यू आपने 2 भरनी है। इट इज मोनोवेरिएंट, आइदर कंपोजिशन कैन बी वेरिड और टेम्परेचर कैन बी वेरिड। वेयर इज द पॉइंट सी? तो इसको यूटेक्टिंग मीन्स इजिली मेल्टिंग। यहां पर आपके पास 3 कंपोनेंट आ रहे हैं। किस तरह से 3 कंपोनेंट आ रहे हैं? लेट मी सी हियर। जो ये वाला पोर्शन है इसमें मोल्टन ए मोल्टन बी, इसमें मोल्टन ए और सॉलिड ए, इसमें सॉलिड बी और मोल्टन, नीचे सॉलिड ए और सॉलिड बी। तो हर एक कंपोनेंट 2-2 3-3 बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने सिंगल टाइम ही लेना है। एक लिक्विड, एक सॉलिड ए और तीसरा सॉलिड बी। तो कितने फेजेस आ गए आपके पास? 3 फेजेस आ गए। सो हियर एट यूटेक्टिक पॉइंट कंपोनेंट्स आर 2 -3 फेजेस +1, इट इज नॉन वेरिएंट सिस्टम। क्या ये? नॉन वेरिएंट सिस्टम। इसी तरह से जो एरिया है नीचे, इसको सॉलिड ए और सॉलिड बी वाला, इसको भी आप जो क्या कर सकते हैं, इसी वे से डिस्कस कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं डिस्कशन के लिए यहां पर। ये कूलिंग कर्व है, बाद में डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशंस हैं। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, इनको किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है? यूटेक्टिक को इजिली मेल्टिंग बोलते हैं। जब आपके पास 2 कंपोनेंट हैं, वो 2 कंपोनेंट जब आप उनको मिक्स करते हो, मेल्ट करते हो, तो दोनों कंपोनेंट आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्ट करके कंपाउंड बना सकते हैं, और कंपाउंड स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। पहला केस तो वो है कि दोनों आपस में मिक्स किए आपने, लेकिन वो आपस में कोई उन्होंने कंपाउंड नहीं बनाया। ए इज मिक्स विद द बी बट देयर इज नो रिएक्शन। इन दैट केस यू आर हैविंग यूटेक्टिक पॉइंट ओनली। तब आपके पास यूटेक्टिक पॉइंट ही आएगा। जब आपके पास 2 कंपोनेंट हैं, वो रिएक्ट कर गए, तो रिएक्ट करने के बाद उन्होंने एक कंपाउंड बना दिया, तो कंपाउंड जो है वो स्टेबल है अगर, और स्टेबल इस तरह से स्टेबल है कि मेल्टिंग पॉइंट तक स्टेबल है, तो हम बोलेंगे दैट कंपाउंड इज हैविंग कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मैग्नीशियम जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो MgZn2 बनाता है। जब ये मेल्ट होगा तो भी कंपोजिशन यही रहेगी, और जब ये सॉलिड होगा तो भी कंपोजिशन यही रहेगी। तो इसको बोलेंगे दैट सिस्टम इज हैविंग कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट तब बनता है जब कंपाउंड तो मिक्सिंग से बन गया, लेकिन वो कंपाउंड